کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ۔ غور سے ہم امیر سنت کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دم دیکھتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں آنکھوں سے۔ افطاری میں گئے تھے، ایک دفعہ دیکھا تھا نا، ایسے آنسو نکل آئے ہیں، پتہ چلتا ہے کامل ولی ہیں۔ ادھر آ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی الگ ہے۔ سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے کل پیر صاحب کی ترغیب پر درس نظامی کی بھی نیت کر لی ہے۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ عالم دین کو انہوں نے بتایا کہ عالم دین بنے، یہاں پہ داخلے لیں، اور میں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں داخلہ لوں گا اور عالم دین بنوں گا۔ 12 ماہ کا قافلے کے لیے فارم پر کیا ہے، انشاءاللہ 12 ماہ کا قافلہ جا رہا ہے، ادھر جائیں گے۔ نیت کی ہے پیر صاحب کے فرمان پہ قافلہ کریں گے، چاند رات 3 دن قافلہ، 20 لوگ ہیں ساتھ، وہ ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ پہلے تو میرا یہی ذہن تھا کہ میں آگے کہیں تدریس کروں گا یا کوئی کسی کاروبار میں لگوں گا، لیکن جب سے یہاں پہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ کل حاجی مولانا طاری نے بھی ذہن دلوایا تھا جامعہ کا، اور اس سے پہلے بھی مجھے بابا جی کو دیکھا، یہاں کا ماحول دیکھا، بہت ایمان تازہ ہوا، تو میں نے انشاءاللہ مصمم ارادہ کیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو میں نے جامعہ داخلہ لینا ہی لینا ہے۔ یہاں پہ آ کے نیت کی ہے امامیہ کی اور داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ۔ میں توبہ کرتا ہوں کہ پہلے جو داڑھی منوائے تھے آئندہ سے نہیں منواؤں۔ الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں امامہ سے سجایا، اور نیت کی ہے داڑھی شریف رکھوں گا، نیت کی ہے الحمدللہ درس نظامی میں نے فارم لے لیا، الحمدللہ میں درس نظامی کروں گا۔ میں نے الحمدللہ جیسا کہ شروع میں امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ نے 3 قرآن کریم پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا، تو الحمدللہ 1200 مرتبہ روزانہ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 3 قرآن کریم بھی اس ماہ رمضان میں ختم کرنے کی نیت ہے الحمدللہ۔ اور فضان رمضان ماشاءاللہ امیر السنت نے اس کا مطالعہ کرنے کا فرمایا تھا، تو الحمدللہ وہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے الحمدللہ میں نے مکمل پڑھ لی تھی۔ نیت یہ کی ہے کہ انشاءاللہ میں 7 قرآن پاک ختم کروں گا، یہ بھی 7 کی نیت ہے، اس سے آگے بھی ہدف جا سکتا ہے جتنے ابھی دن باقی ہیں۔ الحمدللہ میرے 4 قرآن پاک اور 10 سپارے اس رمضان میں ابھی تک مکمل ہو چکے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا صلہ رحمی کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے لوگوں سے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کوئی بھی آپ کی عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کرنا چاہیے، اور چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے۔ پیر صاحب کے جو سے ہوتے ہیں بیانات، حقایات، وہ بہت بندے کے دل کو چھو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا بیان کافی روحانی بیان تھا، اور آج کا موضوع خوف خدا تھا، اور ماشاءاللہ کافی کی پوائنٹس نگران شورا نے بیان فرمائے، خاص طور پہ توبہ کے حوالے سے کہ کس طرح کے انسان رجوع اللہ کر سکتا ہے، توبہ نصوح حاصل کر سکتا ہے، ساری باتیں ماشاءاللہ خوب بڑی پیاری بیان فرمائی۔ نگران شورا کے بیان سے یعنی سیکھنے کو ملا ہے، گناہ کے متعلق انہوں نے آج صبح بیان کیا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے کہ انسان تو نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ جی اصل بات یہ ہے، میں قرآن پاک ہم کو پڑھنا نہیں آتا، یہاں قواعد کے ساتھ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کسی نہ کسی کو سناتا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کہا کہ میں یہاں سے اپنا قرآن پاک درست کر کے پھر یہاں فیضان مدینہ سے جاؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاؤں گا، اور اسلامی بھائیوں کو بڑوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک جا کے پڑھاؤں گا۔ نیت کی ہے انشاءاللہ، یہاں پر بھی امام شریف سجایا ہوا ہے، انشاءاللہ القریب علاقے میں بھی جا کے ایسے سجائے رکھیں گے انشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ہر وہ ہمیں کئی کام سکھائے جاتے ہیں، نماز کے فرض کام ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کس جہالت سے نکل کر یہاں پہ آئے ہیں، اور ہمیں بہت دلی سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پہ آ کے۔ زندگی کا پہلا تجربہ ہے، یہاں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا ہم نے، یا اس جگہ کے علاوہ کہیں پہ بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا۔ اصل میں نا یہاں مرشد کا فیضان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے اندر تو بہت تبدیلیاں آئی ہیں، پہلے ہم خالی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اشراق چاش کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تحفہ ماشاءاللہ جی، میں جی نیت کیتی ہے، میرا دل نے میرے دماغ نے مینوں یہ کیا کہ میں ہن انشاءاللہ 3 دنوں دا قافلہ کراں گا، اس تو بعد میں حضور 3 مہینے دا قافلہ کراں گا، مڑ میں اپنے پیرو مرشد فیض نال انہاں دی دعاواں دے نال انشاءاللہ با فضل خدا حضور میں 12 ماہ دا مدنی قافلہ کراں گا۔
हमें इतने साल हो गए, हमें कुछ भी नहीं पता था, इधर आए तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ पता चल गया। इतकाफ़ में आया हूँ, यहाँ पे माशाल्लाह इमाम का पाबंद बन गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह निगाह शुदा के बयानात बहुत कमाल के होते हैं। एक दिल हला देने वाले मंजर होता है जब सुबह को बयान होता है उनका। जो सोए होते हैं वो जाग जाते हैं और जो हमारे जिस्म के रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इधर आके पता चला है कि हम बिल्कुल नमाज जो है पढ़ गलत रहे हैं, बुखारी के साथ कुरान पाक किस तरह पढ़ना है इधर आके सीखा है हमने। और यहाँ फरियाना मदीना में तो अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ ऐसे समझ में आ रही है और ऐसे समझा रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। पुराने शुरू के बयान सुन के दिल और जोश मारता है कि इसी लाइन में चलें और इंशाल्लाह चलते रहें इसी लाइन। पहले भी इसे गुजरा था, लेकिन यहाँ पे चूँकि रूहानी और मजहबी माहौल है उसकी वजह से बहुत फ़र्क आ गया है। जहन खुलता है बंदे का और ये पता पड़ता है कि आपका दुनिया में आने का एक दीनी मकसद भी आपको मिलता है। मदीनी मुज़ाकरे भी बहुत बेहतरीन होते हैं। बाबा जान की बातें सुनने में बस एक दिल को सुकून मिल जाता है। बस यहाँ आके बस जो गलती कुताहियाँ थी नमाज में भी थी और भी बस थे हमारी कुछ, यहाँ आके सब सेट हो गया। पहले रमज़ान में हमारी यही बस मस्ती माहौल में रात पूरी रात बैट बॉल क्रिकेट, अब यहाँ आके अल्लाह की बारगाह में इबादतों के साथ गुजर रहा है। यहाँ पे आके मैं बाबा जान का दीवाना हो गया हूँ। बाबा जान से जब से मिला हूँ दिल कहता है देखता रहूँ उनका चेहरा, देखते देखते दिल ही नहीं थकता। जब से उनको देखता हूँ, उनकी सूरत देखते देखते दिल को चैन, दिल को करार मिलता है। बाबा जान सिर्फ सलाम के लिए मुझे मुसाफा करने के लिए बुला लीजिए, बस अपने पास अपने गले से लगा ली। बाबा जान अपने गले से लगा लीजिए बस मुझे गुनाहगार को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इर्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इर्तिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत इर्तिकाफ की नियत की। अब मुअतकिफ हो गए, दिल में नियत आते होते हुए ज़बान से कह लेना ज़्यादा अच्छा है। तो जब तक इर्तिकाफ की नियत करने के बाद आप मस्जिद में रहेंगे मुफ्त में इर्तिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इर्तिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, हमें जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि इर्तिकाफ की नियत की हुई थी। नियत नहीं की थी, इफ्तार का टाइम हो गया तो मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे। तो अब नियत कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम मुनासिब है कि एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए करें, खाने के लिए नहीं। और सवाब की नियत से एहतिकाफ की नियत करके कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लीजिए, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अब भले आप इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1444 जी के रमज़ानुल करीम की आज 18वीं रात की निस्बत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम पेज नंबर 5 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 18। अल्लाह पाक की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिले और मुसाफहा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक भेजें तो इनके जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रमज़ान मुतकिफ़ीन किराम जमा है आलमी मदनी मरकज़ में।
اور مدنی مذاکرہ شروع ہوا ہے. آپ سوالات دیجیے, سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں. یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ اصرار کرتا نہیں, شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. آج ایک سوال چلانا چاہ رہے ہیں, بڑا دلچسپ ہے, تو اس کا ٹائم کیا ہو تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی تیار رہیں. 12:15 انشاءاللہ. ٹھیک. احمد بھائی اٹھے. احمد بھائی کیا ہو گیا حفیظ بھائی, سونے دینا, تو تنگ کر رہے ہیں. ارے احمد بھائی اٹھے, امی کہہ رہی ہیں اٹھ جائے اور اٹھ کے نماز پڑھیں. کب تک سوتے رہیں گے؟ حفیظ بھائی مجھے پلیز سونے دے, میری ہمت نہیں ہو رہی اٹھ رہی, بعد میں پڑھ لوں گا نماز. احمد بھائی آپ کے اس طرح روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوتا. روزہ رکھ کر سارا دن سونے میں گزار دیتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ کو پتا ہے نماز کے بغیر تو روزہ بھی نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے حفیظ بھائی, روزہ اگر نہ ٹوٹے تو نماز نہ پڑھنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جی نہیں, ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں بندہ پورا دن ہی سوتا رہے. شاید حفیظ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے, روزے میں سونا بھی عبادت ہے. یہ کیسی عبادت ہوئی کہ آپ کی فرض نماز ہی چھوٹ جائے؟ میرے حساب سے تو ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے حفیظ بھائی روزے اور نماز کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نماز ایک الگ فرض عبادت ہے اور رمضان کے روزے الگ. کچھ بھی ہو احمد بھائی, نماز کے بغیر روزہ بیکار ہو جاتا ہے. اچھا چلیں ایک کام کرتے ہیں, اس بارے میں ہم امیر اہل سنت سے معلوم کر لیتے ہیں. جی یہ صحیح ہے, ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. انشاءاللہ امیر اہل سنت ہماری بہترین رہنمائی فرمائیں گے. میرے پیارے امیر اہل سنت, آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا نماز کے بغیر روزہ بیکار ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ کو انداز ہے سمجھانے کا. بچوں کے انداز بھی ایسے ہیں کہ بڑے بڑے فنکار بھی سوچتے رہ جائیں. دعوت اسلامی کے بچے. ایک حدیث شریف سناتا ہوں. حضرت امام احمد مسند میں عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ سے راوی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں, جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پوری 4 نہ بجا لائے. نماز, زکوٰۃ, روزہ رمضان, حج بیت اللہ. یہ 4 چیزیں یعنی کہ فرض ہیں. یوں فرمایا گیا کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوڑی تو باقی جو 3 ہیں وہ کام نہیں آئیں گی جب تک یہ پوری 4 نہ ادا کر دی جائیں. نماز کی اپنی اہمیت مسلم ہے. نماز ان 4 میں پہلا فرض ہے. پھر بھی اب یہ جو تھا نابالغ بچہ لگ رہا تھا جس نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے, تو نابالغ پر تو فرض نہیں ہوتی, تاہم یہ کہ یہ بڑوں کو سکھانے کے لیے روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں تو یوں مطلب ہے تو بڑی خرابی کے بات. البتہ فقہی اعتبار سے اگر کسی نے روزہ رکھا اور نماز نہ پڑھی, سارا دن سویا ہی رہا, فرض اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا. یہ خیال رکھیے گا, فرض اس کا ادا ہو جائے گا. اب یہ کہ جو یہ عام محاورہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, مانتے نہیں, تم کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جملے مطلب مجھے پسند نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا اس میں کہ نماز نہیں پڑھتے ہو تمہارا روزہ رکھنا بیکار ہے. یوں مطلب بیکار نہیں ہے, فرض تو ادا ہوتا ہے اس سے. یعنی یہ الفاظ
औतात अल्फाज बोलने चाहिए। यार तुमको क्या मतलब इज्तिमा की दावत दूं यार, तुमको समझाना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो ये जहन में रखिएगा कि हम किसी को समझाएं, नेकी की दावत दें, वो मानता ही नहीं, हम बार बार समझाएं वो मानता ही नहीं है, तब भी ये नहीं कह सकते कि कोई फायदा नहीं है। फायदा है, तो हम समझाएंगे तो हमको समझाएंगे तो फायदा तो मिलेगा ना, सवाब मिलेगा। वो माने तभी सवाब मिलेगा ऐसा तो नहीं है। हमने बोल दिया हमको सवाब मिलेगा, माने ना माने। इसी तरह मतलब बेकार है तो तेरे को बोलना बेकार है, ये मतलब नेकी के कामों में इस तरह जुमले ना बोले जाए। या तो इन्होंने जानबूझकर ये बोला है, या मतलब ये कि या तो इनको पता नहीं है जिसने ये बनाया है, ये बच्चे खुद तो बनाते नहीं होंगे, अंडर स्टूडेंट बड़े बना कर देंगे। या बड़ों को मेरा मिजाज पता है कि इस ये बोलेंगे तो ये मजीद मदनी फूल आएंगे इस टॉपिक पर भी। ये भी आवाम को सिखाने की जरूरत है कि बात बात में बोलते हैं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेकार है। तो इसकी भी एक चलो तरकीब बन गई। और नमाज रोजे की भी तरकीब बन गई कि नमाज पढ़नी चाहिए, ज़रूरी है, और वैसे ही ये तो फ़र्ज़ है। और रोज़ा रखे तो और अहमियत बढ़ गई कि अब रोज़े का सवाब बचाना है, रोज़े को बचाना है तो नमाज पढ़े। तो ज़कात जिस पर फ़र्ज़ है वो ज़कात भी दे। हाँ, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो उस रोज़ेदार या उस नमाजी को क्या वो ज़कात नहीं दे रहा, ये नहीं कहा जाएगा कि उस पर फ़र्ज़ ही नहीं तो कहाँ से देगा ज़कात। इसी तरह जिस पर हज फ़र्ज़ नहीं है और वो हज नहीं करता तो नमाज रोज़ा वो सारे उसके एज इट इज़ मकबूल है, क्योंकि उस पर हज फ़र्ज़ नहीं। तो हदीसें जो भी होती है इसकी तशरीह होती है, शरह होती है, तमाम फ़र्ज़ अदा हो जाते हैं। दूसरा फ़र्ज़ नहीं भी किया तो अदा हो जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि इरशाद फरमाए हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बंदे कैसे बने। शुक्र की आला सूरत यही है कि जो उज़्व अल्लाह ने हमें अता फरमा उसको उसकी राह में लगा दे, कि फरमा बरदारी में, उसके महबूब की फरमा बरदारी में लगा रहे। यूँ जो नेकियों में अपने आप को बंदा लगाए रखे है तो वो भी शुक्रगुजारी है। फिर हर नेमत पर याद कर करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। जैसे रमज़ान शरीफ अता फरमाया, अल्लाह का शुक्र है। तंदुरुस्ती अता की, अल्लाह का शुक्र है। चलने के लिए पाँव दिए, अल्लाह का शुक्र है। कि ये पाँव की कदरी जिसके पाँव नहीं होते बेचारों के, उनको मतलब होती है कि काश हमारे पाँव होते। तो ऐसों को देख लिया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि ये बेचारा इसके पास तो पाँव नहीं है, मेरे पास तो पाँव है। जैसे कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इल्म हासिल करने के लिए चले, आपके पास पाँव में चप्पल नहीं थे, यानी जूती नहीं थी, तो आपको यूँ था कि मैं राह खुदा में निकला हूँ और मेरे पास तो जूती भी नहीं है। कूफे की किसी मस्जिद में दाखिल हुए तो वहाँ एक बाहर फ़कीर था जिसके दोनों टांग कटी हुई थी। देखकर फौरन इनको एहसास हुआ और अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पाँव तो सलामत है, जूते नहीं है तो क्या हुआ, इस बेचारे का तो पाँव ही नहीं है। मेरे से ज़्यादा दुखियारा तो ये है। तो अब ये कि किसी के सामने अगर ये शुक्र अदा करना भी है ना, किसी नाबीना को देखकर या अल्लाह तूने मुझे आँखें दी, ये बेचारा मेरू है, सामने मत कहना किसी को, इस तो उसको बुरा लग सकता है। ये मन में, या वो ना देखे इस तरह, ना सुने इस तरह, शुक्र अदा करे। तो हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। नेमतों पर गौर करते हैं तो सही बात है कि फुर्सत मिले नहीं, आदमी हर चीज़ पर शुक्र है। हवा नेमत है, ये भी नेमत है कि ये मुफ्त रखी है अल्लाह पाक ने। अगर ये खरीदनी पड़ती होती तो गरीब तो मर जाते, कहाँ से खरीदते। पानी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, इसके बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। ये भी अल्लाह पाक ने मुफ्त अता फरमाई, पानी की नेमत।
अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम हसन रजा है। मेरा ये सवाल है कि बड़ों को सलाम करना जरूरी है? घर वाले कहते हैं बड़ों को सलाम करो। बड़ों को सलाम करना चाहिए, अच्छी बात है, सलाम सीखना भी चाहिए। और बड़े भी अगर बच्चों को सलाम करते हैं तो इसमें आजिज़ी ज्यादा है, ये भी कर दिया करें तो अच्छा है। लेकिन ये क्या तरतीब यही है कि छोटे बड़ों को सलाम करें, बैठे हुए खड़े हुए बैठों को सलाम करें। ज्यादा और कम जो है वो ज्यादा वालों को सलाम करें, ये इसके आदाब है। अगर इससे के हटकर भी हो तो कोई हर्ज नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम में पहल करते थे, इसकी भी रिवायतें हैं। पहल करना, फिर बच्चों के सर पर हाथ रखकर दुआ देना, सुन्नत भी है कि बच्चों के सर पे हाथ रखकर उसको दुआ दी जाए। इस तरह मतलब है कि छोटों को भी सलाम कर देना चाहिए। तो इस तरह भी छोटे नहीं करते तो सीखेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद अमीर अहले सुन्नत से अर्ज कर रहा हूँ, अगर हाथ साफ ना हो और कोई हाथ मिलाने लगे या कपड़े गंदे मैले कुचैले काम वाले हों और कोई गले मिलने लगे तो क्या करना चाहिए? अगर हाथ ऐसे साफ नहीं है कि इससे गंदगी छूट कर उसके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो हाथ बिना चाहे तो बता दे। मेरे को भी वास्ता पड़ता है खाने के लिए, हाथ धो के आता हूँ, हाथ गीले होते कोई आता है दिखा देता हूँ मेरे हाथ गीले, क्या हर्ज है। इसी तरह कपड़े गंदे हैं, अब इसके बावजूद कोई मिलना चाहता है गंदे कपड़ों से, आप उसको बता दीजिए मेरे गंदे कपड़े गंदे, आपके साफ सुथरे, आप मिलोगे, मैं मिल लूंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, मेरा कुछ मेल कुचेल कम ही हो जाएगा, फायदा ही होगा, आपके कपड़े मिले हो जाएंगे। ये कोई ऐसा तो शायद इश्यू नहीं है ये इसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, नाराजगियां हो जाए। आप मिल लेंगे और इसके कपड़े बेचारा कहीं जा रहा है प्रेस किए हुए साफ सुथरे और इसको धब्बा पड़ गया तो फिर वो आपको घूर के देखेगा, उसको मजा नहीं आएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्जी है कि देखा गया है कि ऐसा भी होता है कि कोई रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए जा रहा है, सफ़र मदीना के लिए जा रहा है, ना उसके पास दुनियावी तालीम है ना कुरान पाक पढ़ा हुआ है, तो इस सफ़र के दौरान वो उम्रा करते हुए कौन सी दुआएं पढ़े और उसके साथ जो दोस्त अहबाब हैं ग्रुप में हैं तो वो उसके साथ किस तरह ताउन करें। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। पहले तो नमाज की खैर मनाए, अब तक नमाजें किस तरह पढ़ता रहा, कुछ आता ही नहीं है, कुरान पढ़ा हुआ ही नहीं है। नमाज तो फर्ज है, उम्रे की बारी तो बाद में आती है ना। उम्रा तो यूं एक्चुअली हर फर्द पर कोई फर्ज वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है, उम्रा करना चाहिए, कार्य सवाब है, नहीं किया तो कोई इसका अजाब नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी, नहीं सीखी, अजाब है। चलो अब जब जागे हुआ सवेरा, लेकिन पिछली नमाजें तो कज़ा करनी पड़ेंगी ना, जो अगर इस तरह गलत पढ़ी हैं, ऐसी गलत पढ़ी हैं कि वो नमाजें टूट जाती थी, होती नहीं थी, सब दोहरानी होंगी। अब उम्रे के लिए अब जा रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, आसानियाँ फरमाए। ये कहे पूछ के किस तरह इहराम बांधना है, किस तरह क्या करना है। अच्छा, अब तवाफ में या सही में कोई ऐसी दुआ है नहीं जो फर्ज व वाजिब हो कि उसके ना करने से उम्रा होगा ही नहीं, यानी तवाफ होगा ही नहीं, या सफ़ा मरवा करेंगे सही, इसमें कोई ऐसी दुआ के जो नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर तो आना आता होता है बोलना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो अगर वो तफसील से नहीं आता तो हजर अस्वद का इस्लाम करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अगर किसी ने कह लिया तब भी मतलब है कि काम चल जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ये पढ़ना है ना इस्तिलाम के वक्त।
ये पढ़े। अगर ये नहीं आता, अब बिल्कुल जैसे कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह दिया, अल्लाह अकबर कह दिया, कुछ भी नहीं कहा। इस्लाम तो सुन्नत है, ये सुन्नत तो अदा हो ही जाएगी। तो यूं मतलब बगैर पढ़े भी तवाफ हो जाएगा, सही दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, अगर दुरूद पाक याद है, किसी को सुना दे, ऐसे को या ना किसी कारी को, अगर वो अपने जैसा ही कोई होगा ना तो हाँ बोल देगा कैसे ही है। किसी को सुना दे कि जो आलिम है या कोई मतलब कारी है जो अच्छा मतलब समझते हैं, वो मतलब दुरूद शरीफ तो वो कोई गलती हुई तो हो सकता है समझा दे। तो हर जगह दुआ की जगह दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, ये अफजल तरीन दुआ है। और दुआओं से तवाफ में बड़ी बड़ी दुआएं हैं, इसकी जगह पर दुरूद शरीफ पढ़ना ज्यादा सवाब है, अफजल है। दूसरे साथियों को भी चाहिए कि आपकी मदद करें, आपको तरीके बताएं कि अब यूं करना है। लेकिन ये कि बाजों का ये होता है कि कई उम्रे जिसने किए होते ना, तो अपने को लगता है कि इसको बहुत कुछ आता होगा, वो रहनुमाई भी कर रहे होते होंगे, और इसमें भी गलतियां होती है। उसको बस तजर्बा होता है, रास्ते मालूम होते हैं, जगह मालूम होती है, लेकिन मसले मालूम नहीं होते। मसले मालूम करने के लिए किताब, अब तो किताबें है ना, रफीकुल हरमैन साथ में रखे, उम्रे के लिए रफीकुल मुअतमिरीन, ये उम्रे का साथी, उम्रा करने वाले का साथी इसका माना है। ये किताब साथ हो, ये मतलब देख देख कर पढ़ के इससे, और फिर जो तजर्बाकार है बेशक उससे भी मदद ले ली, वरना सिर्फ जो अवाम होते हैं ना, ये सब बताएंगे आपको तरीका, लेकिन इसमें ऐसी गलतियां बाजू होती है कि इनको खुद बेचारों को इसकी शुद्धबुद्ध होती नहीं है। अगर इसको मसला भी बताया जाए तो बाज ऐसे अजीबो गरीब होते हैं कि यार मुझे इतने उम्र की, यार मैं कैसे गलत हूँ, इस तरह भी हो सकता हो, तो कुछ का कुछ हो जाए। अल्लाह पाक हमें पहचान नसीब फरमाए। हाँ, कोई उलमा है, उलमा से पूछना चाहिए, अवाम से मसले और तरीके नहीं पूछने चाहिए। और बेहतरीन साथी रफीकुल मुअतमिरीन, ये आपको इंशाअल्लाह बहुत मदद करेगा। ये मकतबतुल मदीना से ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट से दावत इस्लामी की जो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो सबके पास आम तौर पे होता है मोबाइल, उसमें डाउनलोड कर लें तो देख लिया करें। ये रफीकुल हरमैन है, शायद रफीकुल मुअतमिरीन उम्रे वालों की है। रफीकुल हरमैन में भी उम्रे का तरीका है। ये किताब जो अभी अमीरुल सुन्नत ने फरमाई है, रफ़ीकुल मुअतमिरीन, उम्रे पे जाने वालों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। 191 पेजेस हैं इसके, और 140 रुपये में ये किताब जो है वो मकतबतुल मदीना से हासिल की जा सकती है। अब उस वक्त नाम रखा था मैंने रफीकुल मुअतमिरीन, ये जबान पे चढ़ता तो नहीं होगा, मैं लिखा है उम्रे का तरीका, उम्रे का तरीका लिखा है ना, उम्रे का तरीका लिखा है इसमें। हाँ, ये उम्रे का तरीका और दुआएं, माशाल्लाह। हाँ, ये उम्रे का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह और दुआएं। हाँ, ये समझ आ जाएगी, वो नाम तो याद शायद। और पॉकेट साइज की जो जेबी साइज की किताब है वो 85 रुपीस की है। माशाल्लाह। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। अल्लाहु अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने रमज़ानुल मुबारक के 16 रोज़े और सारी तराबियाँ में जा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी सारी नमाज़ें भी जारी हैं। इसका सवाब मैं आपको पेश करता हूँ। मेरा आज तीसरा रोज़ा है। मैं नियत करती हूँ कि आइंदा सारे रोज़े रखूँगी इंशाअल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने
आयशा मुत्तकी बाहया सैयदा आयशा सैयदा जाहिदा सैयदा आयशा है सहाबिये नबी जन्नती जन्नती जारियाने नबी जन्नती जन्नती हज़रत सिद्दीक़ जन्नती जन्नती। अरे मेरे आले सुन्नत, मेरा सवाल ये है कि बाज़ बच्चे नमाज के वक्त खास तौर पर तरावी की जमात के दौरान मस्जिद में शरारतें करते हैं, ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, माशाअल्लाह, मजा आ गया। शेर बड़ा अच्छा याद किया था बच्चे ने, हज पे बुला, माशाअल्लाह, या रब्बे मुस्तफा। इसी ने कहा था ना मेरे साथ हज के लिए जाना है, अजय से पहले वाले ने बात। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम, 3 साल उम्र है इसकी तकरीबन 3 साल, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। अल्लाह पाक सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और माँ बाप के साथ बार बार, माँ बाप भाई बहन भी, दादा दादी नाना नानी जो भी हो, सबके साथ बार बार हज नसीब करे, बार बार मिठा मदीना दिखाए, आमीन। मेरे हक में भी ये दुआएं कबूल हो, आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसमें जो बच्चे बोलते हैं ना, मैंने इतने रोजे रखे, इतने रोजे, माशाअल्लाह, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कहने लगे, लेकिन फिर भी सब नहीं कह रहे, और उम्र भी बता दिया करें, उम्र लिखी भी नहीं होती। अब कम से कम मुझे मतलब स्क्रीन और फासला इतना है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, गौर से जब देखा तो कोई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, तो ये मजबूरी है, बड़ी स्क्रीन यहाँ रख नहीं सकते। तो मैं भी उम्र देखता हूँ, ज़रा अच्छा लगता है कि भाई इतनी छोटी सी उम्र है, वाह। ये बच्चे अगर बोल दिया करें ना मेरी उम्र, ये तकरीबन का लफ्ज, तकरीबन 3 साल है, तकरीबन 4.5 साल है, एक्यूरेट वो उम्र होना मुश्किल होता है जो बोली जा रही, तकरीबन में ये मोहतात अल्फाज हो जाएंगे ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब वो बच्ची ने सवाल किया कि ये बच्चे तरावी में शरारत करते हैं मस्जिदों में, तो इससे तो चंद बार में शायद रमज़ान में अर्ज कर चुका हूँ, इससे बच्चे जो शरारत करते हों, इधर उधर भागते होते हैं तरावी में, तो पता है कि ये बच्चा मेरा शरारती है, भले है समझदार, लेकिन शरारतें करता है मस्जिद में, तो इसों को मस्जिद में लाना गुनाह है, नहीं लाना चाहिए। या एक होता है तो शरारत नहीं करता, शराफत से नमाज पढ़ता है, 1 से 2 होते तब खराबियां आती है। तो अगर ये कंफर्म है कि एक ही बच्चा है मस्जिद में, तो ठीक है, फिर गुनाह नहीं है, जबकि और कोई गुनाह होने की वजह ना हो। तो जहाँ 1 से ज्यादा हो गए तो आप ये कह भगा दिया जाए, घर पहुंचा दिया जाए इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हाथ मिला ऐसे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इंटरनेट से ली गई मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान और हिंद में और दीगर एशियाई कंट्रीज में ये बात आम है कि अगर छोटे बच्चे को खुले आसमान तले लेटा दिया जाए तो उन पर बलाएं और परियां आ जाती हैं। बाज लोगों का मानना है कि बच्चों को एक परी खुशी और गमनाक बातें सुनाकर हंसाती या रुलाती है। अच्छा, मेमन बरादरी में ये कहते सुना है कि अगर बच्चा खुद ब खुद हंसे तो कहते हैं कि परियों इनके रमाइन थी, यानी परियां इनको खिला रही हैं। मतलब परियां इनको खिला रही हैं, खेल वाला खिलाना, ना कि खाने वाला खिलाना। और आम लोगों में भी ये बात राइज है कि बच्चे ख्वाब देखकर हंसने या रोने लगते हैं। पांजा मेमन भा और दीगर अफराद प्लीज तवज्जो, पूछते हैं
اپنے شیخ سے. پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟ ہم بھی بچپن سے یا ہمارا لڑکپن سے سنتے تو آ رہے ہیں کہ پریاں جو ہے یہ بچوں کو کھلاتی ہیں, اور اس طرح بچے جو ہے نا وہ ہنستے ہیں. جو بچے ہنستے ہیں مطلب پریوں رمانتی ہوں. حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریاں کیا رمائیں گے, بچہ ہے. اگر بچہ سے حرکتیں نہ کرے انوکھی تو اس کو بچہ بولے گا کون؟ یہ روئے گا تو روئے گا, ہنسے گا تو ہنسے گا. آپ رو رہے ہیں تب بھی ہنسے گا, اور آپ ہنس رہے ہیں تو یہ روئے گا, بچہ ہے. وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر بڑا پیارا ہے. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خار, کرنے کو گدگدی عبث آنے لگی بہائی کیوں. شیخ منے بوڑھے, شاب منے جوان, طفل شیر خار منے دودھ پیتے بچے. تو یہ کہ یہ بوڑھے اور جوان مسلمان جو ہے یہ اب غفلت کا جیسے شکار ہے. ان کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مہذب طنز کیا ہے, طنزی انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ اے غافل بوڑھو, اے غافل جوانو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی طرف جھکو. کہ یہ جو دودھ پیتا بچہ تمہاری گود میں رو رہا ہے نا, یہ دودھ پیتا بچہ جو تمہاری گود میں ہنس رہا ہے, یہ تمہاری غفلتوں پر ہنس رہا ہے کہ تم کیسے نادان ہو. غافل تو بچہ ہوتا ہے, نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے. تم پر تو یہ چیزیں فرض ہیں, نماز روزے. تو گناہوں سے بچنا تمہارے لیے ہے, ضروری ہے. بچہ تو مرفوع القلم ہے, اس پر تو کوئی قلم ہے نہیں. کرنے کو گدگدی عبث آنے لگی بہائی کیوں. یہ جو بچہ جو ہنس رہا ہے اس کو گدگدی کرنے کے لیے, کہ یہ ہنسانے کے لیے بہائی نہیں آئی, فضول بہائی کیوں آئی ہے, کہ یہ بہائی اس کو ہنسانے کے لیے نہیں آئی, بلکہ یہ تمہاری غفلتوں پر یہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہنس رہا ہے. اچھا, اب بہائی اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, بہائی کیا ہے؟ تو دراصل بہائی جو ہے نا یہ ایک غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہے. ان کے نظریے کے مطابق ایک دیوی ہے, اس کا نام ہے بہائی, اور یہ چھوٹے بچوں کو گدگدی کر کے ہنساتی ہے, کبھی مطلب رلاتی ہے ان بچوں کو. تو اس لیے اس طبقے کے لوگ جو ہیں اپنے زچہ خانے میں جہاں ڈیلیوری ہوم ہوتا ہے وہاں اس کا اسٹیچو بنا کر, اس کا بت بنا کر رکھتے ہیں تاکہ یہ بچوں کو صرف ہنسائے, خوشی کی باتیں کرے. یہ ان کا اپنا کنسپٹ ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو اس کو مطلب ان کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے ان کے ساتھ رہ کر اس کو لگتا ہے بہائی کو پری بنا دیا ہے. یہ پری ہنساتی ہے اور رلاتی ہے. تو اس کا بھی کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو نہ بہائی ہنساتی ہے رلاتی ہے, نہ مطلب پری ہنساتی رلاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کہ وہ انداز میں اپنے علمی انداز میں سمجھا کہ تم لوگوں کی غفلت پر یہ بچہ ہنستا ہے کہ سدھر جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. فیس بک پہ ایک کمنٹ کے ذریعے سوال آیا ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ کیا بندہ اپنی قسمت سے شکایت کر سکتا ہے جب اسے اس کی پسندیدہ چیز نہ ملے تو؟ قسمت کسی فرد کا نام تو ہے نہیں. بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے جو مقدر کیا وہ ہوا. قدر اللہ ما شاء فعل.
अपनी किस्मत को बुरा भला ना कहा जाए। मुसलमान की किस्मत भी भला बुरी क्यों? जिसको इस्लाम की नेमत मिली उसकी किस्मत तो अच्छी है। अब वो वक्ती तौर पर कोई परेशानियां वगैरह आती हैं तो ठीक है, अपनी जगह पर आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन ये कि मुसलमान जो है वो खुशकिस्मत है, हर मुसलमान खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इस हवाले से कि हम खुशकिस्मत है कि दामन मुस्तफ़ा हमारे हाथों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद वक़्त इंसान किसी चीज़ के पीछे पड़ा रहता है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं मिल रहा होता। मकान किराया अपना चाहिए, किराए का है, नहीं उसको आ रहा होता, कोशिशें करता है, बॉन्ड भी ले लेता है, नहीं खुल रहा होता, ये करता है वो करता है, तो जो ये चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा होता, तो उस पर इसके अंदर ये फीलिंग पैदा हो जाती है कि यार अपने इतना चाहते हैं, ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये जो चाहते हैं वो तो मिलता नहीं है। तो एक जगह लिखा था कि जो तुम चाहते थे तुम्हें ना मिला, अब जो मिला है उसे चालो। क्या बात है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया नमाज पढ़ो, अपने से पढ़ी नहीं जाती। रमज़ान शरीफ में रोज़े रखो, अपने से रखे नहीं जाते। झूठ मत बोलो, सच बोला नहीं जाता। वादा खिलाफी मत करो, वादा पूरा किया नहीं जाता। गालियां मत निकालो, ज़बान कंट्रोल में रहती नहीं है ना। इन्हें अल्लाह पाक की एक बात माननी नहीं है, और अगर हमारी कोई ऐसी बात है जो अल्लाह पाक की तरफ से किसी भी मसलहत के तहत वो पूरी नहीं हुई, तो फिर यह शिकायत का अंबार लग गया कि अल्लाह पाक हमारी फलां बात पूरी नहीं करता। और तुमने कौन सी बात मानी यार? रात दिन तो नाफरमानियां कर रहे हो। ये सब बोलना भी वैसे अक्लन भी डायरेक्ट सही नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मदनी मुज़ाकिरा में ये सवाल है कि रमज़ान में शैतान बंद होता है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना ज़रूरी है? रोज़े में आदमी खाना नहीं खाता ना दिन को, फिर दुआ करनी है या अल्लाह रोज़ी में बरकत दे, ज़रूरी है ना? ज़रूरी है ना। शैतान से फला तो मांगनी है ना, कि अगर कैद है भी तो मार तो आएगा ना। और अपने साथ भी तो शैतान पैदा होता है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो एक फरिश्ता पैदा होता है, उसके साथ और एक शैतान पैदा होता है। उस शैतान को हम ज़ात बोलते हैं। इसके कैद होने का तो कोई तस्करा है नहीं, ये कैद होता है, ये साथ लगा रहता है। इससे भी तो पनाह मांगनी है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए। और कुरान पाक जब पढ़ते हैं उस वक्त भी तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं शुरुआत में, तो ये तो मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, मुस्तहब है, सुन्नत है। हाँ सुन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तिलावत से पहले पढ़ना सुन्नत है। कोई किताब में वाजिब भी लिखा हुआ था, लेकिन फिर बाद में उसकी यहाँ तसहीह कर ली गई। आपसे सवाल ये है कि अगर कोई 2-3 रोज़े छोड़ दे, क्या वो इत्काफ में बैठ सकता है? और मेरे वालिदैन और मेरे लिए दुआ कीजिए। 10 दिन इत्काफ जो है ना आखिरी, इसमें तो रोज़ा शर्त है। इससे पहले अगर रोज़े किसी वजह से छूट गए तो इत्काफ कर सकता है। अगर जानबूझकर छोड़े तो सख्त गुनाहगार भी है, और तौबा भी करे और रोज़े इसकी कज़ा करे। अगर सिरे से रखे ही नहीं थे तो कज़ा है, और रखकर तोड़े थे तो फिर इसकी सूरतें हैं कि कब कफ़ारा है कब कज़ा है, फिर उसके अलग मसाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरी शॉप है और कुछ लेडीज़ हजरात भी आती हैं, तो वो सलाम करती हैं, क्या उनके सलाम का हम जवाब दे सकते हैं या नहीं? और 26 दुरूद पाक आपके वालिदैन और आपके इसाले सवाब के लिए मैं पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को इसाले सवाब का बहुत बहुत शुक्रिया। जवान औरत अगर सलाम करे तो उसको दिल में जवाब दिया जाए, बूढ़ी करे तो जबान से जवाब दे सकते हैं।
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे सुन्नत से मेरा ये सवाल है, फितरे के पैसे मेरे पास नहीं है तो मैं उधार लेके दे सकता हूँ? अगर फितरा वाजिब है, जिस पर हर फर्द पर वाजिब नहीं होता, साहिब निसाब पर वाजिब होता है, और वो ईद उल फित्र को सुबह सादिक के वक्त अगर साहिब निसाब है तो इस पर और इसकी नाबालिग औलाद की तरफ से भी इस पर सदका फित्र वाजिब हुआ। तो अब अगर पैसे छुट्टे नहीं है इसके पास या हैं लेकिन अभी पहुंच नहीं है उस वक्त उस तक बंदे नोट है जैसे, तो अब वो किसी से उधार ले लिया और फितरा अदा कर दिया, ठीक है, हो जाएगा। और वाजिब ही नहीं है तो उधार लेने की जरूरत भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं अगर टांगों में दर्द होने की वजह से बैठकर नमाज तरावी अदा की, फिर फजर से पहले पहले टांगों में जो दर्द था वो सही हो गया, तो अब क्या तरावी दोबारा दोहरानी पड़ेगी? नहीं। एक सवाल ये आया है कि किसी को समझाएं, बहुत ज़्यादा समझाएं कि गुनाह छोड़ दे, ड्रामे देखना छोड़ दे, फिर भी वो अगर उससे बाज ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? समझाता रहे, अपना सवाब खड़ा करता रहे, ये नहीं बोले तो ये समझाने से कोई फायदा नहीं है। सवाब कमाना, सवाब मिलना फायदा ही है ना। कोशिश करते रहे, अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से है और तकमील, इसको कंप्लीट करना इसको अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह जब हिदायत देगा तो देर नहीं लगेगी, इंशाअल्लाह हो जाएगा काम। बार बार समझाने से हो भी जाता है काम, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आदमी, फिर कभी ना कभी उसको चोट लग जाती है, चोट खा के वो कभी आ जाता है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अहमद रजा भाई ये कह रहे हैं कि जब हम नमाज में तशहुद में बैठते हैं तो उल्टे पाँव पर बैठते हैं और सीधे पाँव को खड़ा करते हैं, अगर किसी उज़्र की वजह से, किसी ऐसे ही बंदे को कोई उज़्र नहीं है फिर भी ऐसा नहीं किया उसने, तो नमाज पर कोई असर पड़ेगा? सुन्नत छूटी उससे। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि क्या घर में काम करने वाली मासी को ज़कात दे सकते हैं? अगर हकदार हो तो दे सकते हैं। जो सवाल ये वो कि खुशी के मौके थे नोटू जो हार पिराइनो इस्लामी तालीमात में कुरवाई, जायज़ है। ऐसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। मदनी चैनल के नाज़रीन, अक्ल और ज़बान का एक ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक बिल्कुल अजीब किस्म का और उलट है। जितनी अक्ल छोटी होगी उतनी ज़बान लंबी होगी, और जितनी अक्ल बड़ी होगी उतनी ज़बान छोटी होगी। प्यारे अमीर सुन्नत, आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? क्या ये बात ठीक है, और अगर ठीक है तो किस तरह? ये छोटी बड़ी इसके वो गोश्त की साइज है या जैसे कि भाई इसकी ज़बान इतनी बड़ी है, यूँ बोलते हैं, जो ज्यादा बोलता है ना उसके लिए बड़ी ज़बान बोलते हैं, तो जो बेवकूफ़ होता है वो ज्यादा बोलता है, नहीं बेतुकी बोलता है वो। वरना ये कि जो ज्यादा बोलने वाले अच्छा बोलने वाले भी होते हैं, कई कई घंटे बयान करते हैं, तिलावत करते हैं, है ना, नात शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ये तो इसमें है नहीं। तो लंबी ज़बान वो खराब, जो फजूल गोई के जरिए लंबी है, और मुख्तसर ज़बान वो खराब क्या जो अल्लाह और रसूल की बात करने से भी कतराती कि वही है, नहीं बोलना नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कहते हैं जानवर की ज़बान बड़ी होती है मगर बोल नहीं पाता, इंसान की ज़बान छोटी होती है मगर चुप नहीं रह पाता। और ज़बान बहुत खतरनाक होती है, इसको 32 सिपाहियों के फेरे में
पैरे में रखा है, 32 दांत है ना, लेकिन जब घूमती है तो 32 सिपाहियों का पैरा तोड़कर बाहर निकलती है और स्ट्रेट फायर करती है। हट जाओ, मैं आ गई हूं मैदान में। तो ज़बान तो तख्ते उलटवा देती है, कत्ल करवा देती है, लाशें गिरा देती है। ज़बान है मतलब बस। अच्छा, आपका शायद इस मामले में मुशाहिदा रहा हो कि किसी को गुस्सा आ जाता है और वो या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर वो फट पड़ता है और गुस्से में आ जाता है, ना बोलने का भी बोल देता है। अच्छा, जैसे ही वो उसकी वो पोजीशन जो थोड़ी सी रिलीज और कंट्रोल में आती है ना, तो वो अपनी उस तमाम जो 5, 10, 15, 20 मिनट पहले जो उसने हरकतें की थी उसको लपेटने की कोशिश करता है, संभालने की कोशिश करता है। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर मुस्कुरा भी रहा होता है, फिर थोड़ा सा यूं भी तफन्नुन भी कर रहा होता है और लोगों को ये एहसास दिला रहा होता है कि मतलब कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आपने 20-25 मिनट पहले देखा था, ये मेरा सेकंड फेस ये है। तो उसको ये अपनी इस पूरी गलती को संभालने के लिए मज़ीद आधा घंटा ज़ाया करना चाहिए, या उसको जैसे ही एहसास हो कि ये अपने ने कर तो डाला है जो नहीं करना था, तो फ़ौरन अगली 2 से सेकंड के अंदर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मेरे से जो हुआ ना, ये होना नहीं चाहिए था, भूल हो गई है, ये मुझे एहतियात करनी चाहिए थी। क्या फरमाते आप? हाँ, ये आपने अक्ल की बात की। ये कि मान लेने में सामने वाले का दिल मुतमईन हो जाएगा। आप अपने दलाइल से, ये बाजों की आदत होती है, बस बहस बराए बहस उन्होंने करनी है, यानी कि बस हाँ भी मेरी, ना भी मेरी, मैं जो बोलूं बस उस पर पीछे नहीं हटना है। तो ये ऐसे लोग नुकसान दे देते हैं, लोग उनसे बदजन होते हैं या उसके शर से बचने के लिए उसको सलूट करते हैं, बाकी दिल में थोड़ी कदर कम हो जाती है। इसलिए भूल हो गई, हो जाती है भूल, इंसान है। अगर जो भी शरीय तकाज़े पूरे कर ले, दिल दुखा दिया तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली जाए, हक़ुल्लाह तलफ़ किया तो तौबा कर ले आदमी। तौबा तो बहरहाल करनी है, बंदे को इज़्ज़त देना मना किया अल्लाह और रसूल ने, तो इस तरह जल्दी निपट भी जाएगी और आदमी के दिल में इसका एहतराम बढ़ जाएगा कि यार है आदमी सच्चा है यार। निकल गया तो उसने इसकी लिप नहीं की, बात मान ली, इसने एतराफ कर लिया, इसमें फायदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के 2 शेर है, तर्जमा है, अपनी जबान की हिफाजत कर, क्योंकि ये मामूली सा उज़्व यानी पार्ट बहुत जल्द इंसान को हलाकत तबाही में डाल देता है। बेशक जबान इंसान के दिल पर दलील है, जो गुफ्तगू करने वालों की अक्ल का अंदाजा बताती है। तो वो जो करता है तो जबान जो है ना उसकी दलील है कि ये अब सामने वाला अगर समझदार है तो समझ जाता है, जो बोलता है ना तो इससे इसकी अक्ल का अंदाजा हो जाता है, तारुफ हो जाता है उसका। एक फिलोसोफर ने किसी को कहा था, इतनी सी बात कही, बोल मैं जानूं कि तू कौन है। वाह, बोल मैं जानूं, तू बोल मैं जान सकूं कि तू कौन है। सुभान अल्लाह। मगर बोले अंदाजा मुश्किल है, आदमी बोलता है, बोलना इंट्रोडक्शन है। बाजू बड़े मोहब्बेदार बार रोब होते हैं और खुलती है तो समझ आ जाती है। अपने को लगा बड़ी बड़ी शख्सियत है यार, बोला तो गया काम से। वो जो इफ्तार वाला ना, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो मजलिस थी जिसमें आप जवाबात दिया करते थे सवालात की, जी मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा बोलते, तो उसमें कई लोग आते थे, लोग सवालात करते थे। तो एक बुज़ुर्ग थे बड़ी उम्र के, वो भी आते थे लेकिन वो चुप बैठे रहते थे, सवाल करते ही नहीं थे। वो बड़ा वो वही मोबेदार शख्सियत थी, रोबदार शख्सियत थी। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बार उनसे फरमाया कि लोग आते हैं सवालात करते हैं, आप आते हैं बैठे रहते हैं, कोई सवाल करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सवाल करूं? कहा कीजिए। तो कहा कि रोज़ा कब इफ्तार करना चाहिए? कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो उस वक्त रोज़ा इफ्तार करना चाहिए।
تو میں پھر دوسرا سوال کیا کہ اگر سورج غروب ہو ہی نہ تو پھر کیسے روزہ افطار کروں؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ خاموشی بہتر تھے. خاموشی اچھے لگتے ہیں آپ. تو بات ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں تو مطلب بیچارے پھنس جاتے ہیں. میرا ایک دوست پرانا ہوتا تھا, پرانی بات ہے, تو کبھی ہم کہیں جیسے جائیں نا, کوئی گفتگو کرنی ہے, کوئی بات کرنی ہے, تو میرے ساتھ ہوتے تھے, مگر وہ جو بھی تھے مجھے پتا ہے, تو میرے کو بولتے تھے کہ مجھے بلوانا نہیں ہے. میں چپ ہوتا ہوں, میرا روب رہتا ہے, کہ بول نہیں پاتے تھے, وہ کوئی علمی بات نہیں کر سکتے تھے. تو یوں واقعی ہے نا کہ نہ بولنے میں نو گن. ایک اور بات کی بھی اگر تھوڑی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ بعض اوقات آپ کسی کو حضور کام ارشاد فرمائیں کہ یار یہ ذرا کر لینا. جیسے صبح آپ کسی کو کام دے چکے, اب وہ شام کو آپ نے اس سے پوچھا کہ یار اس کام کا کیا ہوا, حقیقت میں وہ بھول چکا تھا. اب وہ آپ کو بولے کیسے کہ میں بھول گیا تھا. اچھا میں گیا تھا نا, تو ہوا یہ تھا کہ میں نے اس پہ بہت غور کیا نا, غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ اس میں یہ نہیں یہ لگتا ہے نا, یہ نہیں یہ لگتا ہے, تو میں نے وہ کام کیا نہیں. میں کہا چلے شام کو آپ سے ملوں گا تو پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. تو آپ اس سے اگر ایک بار تھوڑی سی ہمت کر کے پوچھ لینا, یار یہ بتاؤ غور کیا تھا کہ بھول گئے تھے, تو اسے غور کچھ بھی نہیں کیا تھا, بس اس کو یہ بولنا جو ہے نا کہ میں بھول گیا تھا, یہ اس پر بھاری ہے کہ یار میں کیسے بولوں کہ میں بھول گیا تھا. تو یہ اعتراف نہیں کرتا, اس کو اعتراف جرم کہتے ہیں یا اعتراف خطا کہتے ہیں. اس سے آدمی جھجکتا بہت ہے اور کہتا ہے یار ابھی کیسے بولو یار میں بھول گیا تھا. تو یہ کیسے اعتراف جرم یا اعتراف خطا کا جذبہ کیسے آ جائے گا, یار بھول گیا تھا معافی چاہتا ہوں, غلط ختم ہو گئی بات, اگلا کیا اس کی جان مان تھوڑی لے لے گا. یار ٹھیک ہے بھول گیا تھا تو بھول گیا تھا, اب بھول تو ہو ہی جاتی ہے انسان سے, خطا ہو جاتی ہے. تو ماننے میں نہ ماننے کی وہ پھر کہتے ہیں. اچھا پھر ایک اور میں حضور ایک آپ کو عرض کر دوں. اب ہوا یہ کہ جیسے آپ نے کسی کو کہا یار جاتے جاتے کسی کو یہ بولتے ہوئے چلے جانا, جاتے تو بھول گیا کہ اس کو دوپہر کو یہ کام کرنا تھا. آپ نے دوپہر کو دیکھا کام ہوا نہیں تھا, شام کو جب وہ آیا تو آپ نے اس کو پوچھا کہ یار کیا ہوتا. اصل میں وہ شام کو آپ کے پاس آتے آتے اس کو بتا کر آیا. اب آپ پوچھو گے یار اس سے کام تو کیا نہیں, میں نے تو بتا دیا اس کو, کام نہیں کیا اس نے. اچھا میں پوچھتا ہوں کیوں کام نہیں کیا. یعنی کہیں بھی اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے, چاہے وہ جھوٹ بول کر, غلط بول کر, یا کسی اور کے اوپر ڈال کر کہ اچھا اس نے نہیں کیا حالانکہ اس کو بولا یا بھی تھا. تو ایسا شخص جو اس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے غلط بیانی بھی کرتا ہے یا کسی پر ڈال دیتا ہے, اس کو بدنام کر دیتا ہے, ایسوں یہ طبیعتیں درست ہوں اور یہ مزاج مثبت کی طرف جائے, کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت ہے, اس معاشرے میں چکر دینا مطلب کام ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہتے ہیں نا, اللہ پاک بس ہدایت دینے والا ہے. دینی مطالعہ ہو, اچھی صحبت ہو, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے, تو انشاءاللہ اس طرح کی باتیں سمجھ پڑنی شروع ہو جائے گی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. جیسے کیوں دیر سے آئے, ٹریفک جام تھا. نکلے کب یہ آدمی پوچھتا نہیں ہے, وہ نکلے ہی دیر سے تھے. اب ٹریفک جام ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ٹریفک جام اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوتی ہے, بعضوں کا سڑکوں کا پتا ہوتا ہے آدمی کو, تو جلدی نکل آتے, پہنچ جاتے اپنی جگہ پر. لیکن وہی بس ٹریفک جام تھی, ٹریفک جام کر کے نکلا تھا, میں یہ نہیں بتائے گا کہ میں نکلا ایسے موقع میں ٹریفک جام ہو جاتی ہے. بہرحال ہے کہ بعض اوقات تو نہ بولنا اچھا ہوتا ہے, بعض اوقات بولنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس میں اگر خاموشی بھی آدمی کو جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. لیکن اتنا احساس ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں کیا بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں زبان پر کنٹرول نصیب فرمائے. کہیں کہیں بولنا ضروری ہو جاتا ہے. ایک بار ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا کہ باہر ملک میں کچھ پاکستانی تھے, اس لیے وہ بات چیت کچھ ہو رہی تھی, تو ایک نوجوان کچھ زیادہ ایڈوانس لگ رہے تھے بولنے میں.
वैसी सी बातें कर रहे थे, मैं भी शायद कुछ ना कुछ तो बोला हूँगा उस वक्त, एक दो मेरे साथ एक आध होगा उस वक्त साथ। बोलते बोलते मुझे लगा कि अभी ये कहीं कुफ्र बक देगा, ऐसी मतलब इन्हें गुफ्तगू हो रही थी। अब मैं क्या करूं, मेरी तो सुनेंगे नहीं। फिर मैंने कहा ठहरो, मेरा नाम मोहम्मद इलियास काजरी है, मैं पाकिस्तानी है तो शायद मुझे नाम सुना उन लोगों ने। अब जैसे मैंने नाम लिया ना, एकदम इनके अंदर वो थोड़ा आजी और घिघियाने जैसे लगे, और अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ फरमाइए फरमाइए, यानी बिल्कुल फिर अब मैं बादशाह था, समझे। मैंने जो बोला ये मान गए। जब फिर मुझे अपने डेरे पे ले गई है, अब हमारे चाय की दावत, तो हम गए वहाँ और बड़ा एक माहौल बन गया। फिर उस मुल्क में दावत इस्लामी काम भी हो रहा था, मैंने इनको कुछ समझाया बुझाया, तो वो गाड़ी भरकर हफ्तावार इज्तिमा में इनकी शुरू हो गई। ये कहीं बोलना जो है ना फायदा देता है, और इन्हें वो जरूरत थी वहाँ बोलने की, वरना ये पता नहीं क्या क्या वो बात कहाँ से कहाँ निकलती है। बोलना भी क्या, यहाँ अपना तारुफ करवाना, अपनी शोहरत से इज्जत से फायदा उठाया मैंने, और इनका रुख कहीं इधर उधर हो गया, गालिबन बैत भी हो गए। इस तरह का कुछ माहौल बन गया था। रात का वक्त था, ये जब ले गए, रात भी काफी हो चुकी थी, और फिर इन लोगों ने मतलब लोगों को अतराफ में जो थे ना, गालिबन उठा उठा के ले आए नींद से, और यानी जो ऐसे मोबाइल का तो कमरा भर गया, इतने लोग आ गए। पाकिस्तानी सब काम करते होंगे ना, तो यूं एक माहौल बनाने की दावत का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या रब न जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं, या रब न जरूरत के सिवा कुछ कभी बोलूं। अल्लाह जुबां का हो अता कुफल मदीना, अल्लाह जुबां का हो अता कुफल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, मेरा नाम मोहम्मद ताहा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बच्चियों के नाम अजवा फातिमा या तो फजर फातिमा रखना जायज़ है? साथ ये भी अर्ज़ है कि अगर किसी ने अपना नाम ताहा रखा हो तो उसे क्या करना चाहिए? गुलाम ताहा, ताहा यासीन ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं कुरान करीम के, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे खिताब किया गया है, अल्लाह पाक ने खिताब किया है। तो इसके चूंकि माना पता नहीं है, क्या माना है अल्लाह बेहतर जाने। अब मसलन आला हज़रत ने यासीन की मिसाल दी है। यासीन के माना अगर रसूलुल्लाह अगर है, ये औरों का तो नाम हो नहीं सकता, औरों को रसूलुल्लाह बोल नहीं सकते, और लफ्ज़ मोहम्मद अगर शामिल करते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, ये भी नहीं हो किसी और को बोल सकते। तो यूं यासीन नाम ना रखा जाए। तो यासीन तो ताहा ये भी मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को पुकारा गया, और ये भी तो मुक़त्तआत हुरूफ मुक़त्तआत में से, इसके माना अल्लाह जाने, उसके बताए से उसके हबीब जाने। तो यूं बचना मुनासिब है इन नामों से, रखना है गुलाम यासीन, गुलाम ताहा ये रखा जाए। अब ये कि अजवा फातिमा न बीबी फातिमा की अजवा खजूर, बीबी फातिमा भी मदीने की है, जन्नतुल बकी में आराम फरमा है, और अजवा शरीफ ये खजूर भी मदीने की है, कि मतलब मदीने में ही पैदा होती है ये, और सबसे अफजल खजूर ये है। अजवा फातिमा, बीबी फातिमा की अजवा खजूर, नाम रखने में तो कोई ज़्यादा हरज नहीं है। जरा फजर फातिमा, इसमें भी मना नहीं है कि नमाज फजर शायद यहाँ मुराद दी हुई उन्होंने, तो फजर के माना नमाज नहीं है, फजर का वक्त। तो ये भी नाम बुरा नाम इसको नहीं कहेंगे, बीबी फातिमा की फजर, यूनिक नेम रखते हैं लोग, तो ये यूनिक
अजान नाम रखते हैं, नमाज अभी तक नाम नहीं सुना मैंने, हो सकता आप कोई रख भी ले, लेकिन मशवरा ये है कि अंबिया किराम के नामों पर, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नामों पर, जैसे ये यासीन और ये नहीं है न, जिनके माना वाजे नहीं है हम पर, वो नहीं, बाकी और बहुत सारे नाम है, सिफाती नाम। लफ्ज़ मोहम्मद, पहले तो ये नाम मोहब्बत की वजह से, सरकार से मोहब्बत की वजह से और बरकत हासिल करने के लिए मोहम्मद रखे, और फिर ये पुकारने के लिए कोई सिफाती नाम में से रख ले, या किसी नबी का नाम रख ले, या किसी सहाबी का, या औलिया किराम में से किसी के नाम के मुताबिक अहले बैत अताहर के मुबारक नामों से कोई नाम रख लिया जाए। बीबी फातिमा, अजवा फातिमा भी सही है, लेकिन अगर कनीज फातिमा होता या सिर्फ फातिमा होता तो भी ठीक है, अच्छा है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम अल्लाह देता है, मैं कसूर शहर से बात कर रहा हूँ। औरत के जब मखसूस अयाम होते हैं तो उसमें मोबाइल से देख के कुरान पाक वो पढ़ सकती है? असल बारी के दिनों में पढ़ना ही गुनाह है। कुरान करीम औरत तिलावत नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी आयत है कि जो दुआ के माना में है तो वो बतौर दुआ पढ़ सकती है, जैसे सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत है, तो ये अल्लाह की तारीफ है, इसमें दुआ भी है, तो हमदो दुआ की नीयत से इसको पढ़ सकती है। तिलावत की नीयत से ये भी पढ़ेगी तो गुनाहगार होगी। कुल हुवल्लाहु अहद, इसका लफ्ज कुल हटा कर अगर पढ़नी चाहे तो हुवल्लाहु अहद, ये भी अल्लाह की तारीफ पर ही है, इसमें वहदानियत का बयान है, तो कुल हटा कर पढ़ सकती है। कुल के साथ पढ़ेगी तो इसका कुरान होना मुतय्यन हो गया कि अब नहीं पढ़ सकती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम नौमान है। कोई रोजेदार हमारे सामने भूल कर खा पी रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब इरशाद फरमा दें। रोजेदार अगर भूल कर खा रहा हो पी रहा हो तो उसको बता देना वाजिब है, जबकि पता है कि रोजेदार है। अच्छा, अब इसमें भी सूरतें और भी बुजुर्गों ने बयान की बाहर शरीयत में कि अब वो कोई कमजोर है, बूढ़ा है और ऐसा लगता है कि खाएगा पिएगा नहीं तो रोजा पूरा नहीं कर सकेगा, तो अब इसको ना बताना बेहतर है कि बता देंगे तो उसको रुकना जरूरी हो जाएगा। अब नहीं रुकेगा तो रोजा ही टूट जाएगा, और भूल कर खाने पीने से रोजा तो नहीं टूटता, तो अब इसको खाने पीने दिया जाए, बोले नहीं कुछ, ताकि वो इसको अल्लाह ने खिलाया और रोजा भी इसका हो जाएगा। जवान है या सेहतमंद है कि ये रोजा पूरा कर सकता है, तो अब इसको बताना वाजिब है, नहीं बताएगा तो गुनाहगार होगा। जवान बूढ़ा या कमजोर ताकतवर है, जवान बूढ़े का नहीं है, वो जवान भी ऐसा कमजोर है, लागिर है, मरीज है बेचारा कि रोजा पूरा नहीं रख सकेगा, रख लिया बेचारे ने और भूल कर खा पी रहा है, तो उसको खाने पीने दिया जाए। बूढ़ा तगड़ा है कि रोजा बूढ़े रखते ही ना रोजे, यार मैं भी तो बैठा हूँ, रख ही रहा हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे भी देख लेगा तो बताना वाजिब हो जाएगा कि पता है कि ये रोजे पूरे कर लेता है खाए पिए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए एक सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि रमज़ान में लोग गली में क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी बॉल्स वगैरह ये हमारे घर पे आ जाती हैं, गली के अंदर आ जाती हैं, घर में आ जाती हैं। अब वो हमसे मांगते तो हैं नहीं, तो क्या हम उनकी बॉल्स रख सकते हैं? जी हाँ, देना पड़ेगा, नहीं रख सकते। अब्दुल गफ़ार भाई हैं, ये कह रहे हैं कि दीन की मालूमात ये किस तरह के आलिम साहब से लेनी चाहिए? आशिक रसूल हो, पक्का सुन्नी हो, और इस दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान
रहमतुल्लाह अलैह के फतवों पर आंखें बंद रखने वाला हो, उससे। दुनिया में करोड़ किताबें और उनके अंदर अरबों खरबों अल्फाज लिखे हैं, सतरें हैं, लाइंस हैं, लेकिन वो लाइंस जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं, मोस्ट पावरफुल टेक्स्ट सूरह फातिहा शरीफ, इन्हें ना सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि पढ़ने वालों के पेश नजर एक मकसद है, इबादत, एक खास अंदाज में खड़े होकर नज्मो ज़ब्त के साथ। और ये तो अनडिस्प्यूटेड क्लेम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिश होने वाली, पढ़ी जाने वाली और जिस तरह से है उसी तरह से याद की जाने वाली किताब वो कुरान मजीद है। और कुरान मजीद की पहली सूरत, पहला चैप्टर वो सूरह फातिहा है, जो कि हर लम्हा दुनिया भर में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद पढ़ रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर इरशाद फरमाइए कि कुरान मजीद की इस अजीम सूरत की इनफरादियत क्या है और नमाज के अलावा अगर इसकी तिलावत की जाए तो इसके क्या फवायद हैं? माशाअल्लाह, सूरतुल फातिहा की तो क्या बात है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक फरिश्ता आसमान से उतरा और उसने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश करके अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उन दो नूरों की बिशारत हो जो आपके अलावा और किसी नबी को अता नहीं किए गए। और वो दो नूर ये हैं, नंबर 1 सूरह फातिहा और नंबर 2 सूरह बकरा की आखिरी आयतें। सूरह बकरा की आखिरी आयतें से मुराद आमन रसूल, 2 आयतन आमन रसूल से लेकर फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन तक, इसके भी बड़े फजाइल है। यानी अक्लमंद, मौलानी का ये इरशाद है कि कोई अक्लमंद रात को ये आयतें पढ़ना तर्क नहीं कर सकता, इतनी फजीलत है इसमें। हजरत सैयदना उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने तौरात और इंजील में उम्मुल कुरान की मिसल कोई सूरत नाजिल नहीं फरमाई। उम्मुल कुरान यही सूरतुल फातिहा। हजरत अब्दुल मलिक बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं, 70 कैमल्स। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल नकल करने के बाद फरमाते हैं, एक ऊंट के यानी कितने ही मन, एक ऊंट कै यानी कितने ही मन बोझ उठाता है, और हर मन में कै यानी कितने हजार अज्जा यानी हिस्से होते हैं। इनका हिसाब लगाया जाए तो ये हिसाब से तकरीबन 25 लाख जुज बनते हैं। ये फकत सूरह फातिहा की तफसीर है। जुज वो जाजी साइज के सफ़े, जुज़ तकरीबन 15 से 20 सफ़ात पे मुश्तमिल जो रिसाला होता है, इतना उसको बोलते हैं। यूँ सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है और इसकी बड़ी फजीलत है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत जिक्र की, फरमाते इब्लीस यानी शैतान 4 मरतबा चीखे मार कर रोया। नंबर 1 जब उस पर लानत बरसी, नंबर 2 जब उसे जमीन पर उतारा गया, नंबर 3 जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया,
नंबर 4, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। हजरत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान इंतहाई मशक्कत में पड़ा और खूब डाड़े मार मार कर चीख चिल्ला कर रोया। हवाला तफसीर दुर्र मंसूर पारा 1 सूरह फातिहा जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 17। हकीमुल उम्मत हजरत अलहाज मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान करीम को जहाँ से भी पढ़ा जाए हर हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयतों को पढ़ने की ये फजीलत है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां भी मिलती हैं और इसके अलावा खुसूसी सवाब भी अता किया जाता है। हवाला मिरातुल मनाजी जिल्द 3 पेज नंबर 232। खुलासतन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इलियास कादरी साहब से मेरा यही सवाल है कि तकब्बुर से कैसे बचा जा सकता है, काइंडली रहनुमाई फरमाए। तकब्बुर ये बहुत बड़ी बुरी बला है। पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 23 में इरशाद होता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। बेशक वो मगरूरों यानी मुतकब्बिर लोगों को पसंद नहीं फरमाता। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तकब्बुर करने वाले लोग क़यामत के दिन मर्दों की सूरत में चोटियों की तरह जमा किए जाएंगे और हर जगह से उन पर जिल्लत छा जाएगी। फिर इन्हें जहन्नम के एक बूलस नामी कैद खाने की तरफ हाँका जाएगा। इन पर आगों की आग छा जाएगी और वो दोज़खियों की पीप तीनतुल खब्बाल से पिलाए जाएंगे। अलमान व हाफिज। हदीस मुबारका में तकब्बुर के जो इलाज बयान किए गए इनमें से 2 इलाज पेश खिदमत है। नंबर 1 अपने काम खुद करना। चुनांचे हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अपना सामान खुद उठाया वो तकब्बुर से बरी हो गया। नंबर 2 आजिज़ी इख्तियार करना और मिस्कीन के साथ बैठना। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आजिज़ी इख्तियार करो और मिस्कीनों के साथ बैठा करो। अल्लाह पाक की बारगाह में तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा और तकब्बुर से भी बरी हो जाओगे। और भी इसकी सूरतें सलाम में पहल करने वाला ये भी हदीस पाक में है कि वो तकब्बुर से बरी है। तकब्बुर नामी एक किताब है मकतबतुल मदीना की 100-150 पेज होंगे इसके। इसमें तकब्बुर के ताल्लुक से काफी मवाद है, इलाज भी उसमें बयान किए हुए। ये किताब जरूर हासिल कीजिए, खरीद लीजिए मकतबतुल मदीना से या फिर दाऊद इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड करके इससे इस्तिफादा कीजिए, ने फायदा हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हफ्तावार जो रिसाला कारकर्दगी है इसके हवाले से जो हमारा एक पैकेज होता है वो देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजिरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। एक रहमत की बरकत शेख अबू अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह करीम जिस पर एक रहमत नाजिल फरमाएगा वो रहमत उसकी दुनिया और आखिरत के सब मुआमलात में किफ़ायत करेगी। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से जिस पर 10 रहमतें उतरे उसका क्या आलम होगा। या रब्बल मुस्तफ़ा जो कोई 21 सफ़हात का रिसाला फैज़ान इमाम अली रज़ा बढ़िया सुन ले उसको साहबा और अहले बैत की मोहब्बत से माला माल फरमा और वालिदैन और ख़ानदान समेत उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सुबहानल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। अल्लाह पाक की रहमत की। सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान इमाम अली रज़ा। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे खानदान सादात की बरक़ात, ज़मीन आसमान में रज़ा, इमाम अली रज़ा की 10 करामात, इमाम अली रज़ा की इल्मी शान और बहुत कुछ। उर्दू ज़बान में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 25 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मज़ीद 7 ज़बानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, हिंदी, सिंधी, पश्तो, रोमन उर्दू और फ्रेंच शामिल हैं। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113978 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अमीर अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला अमीर अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब। पाकिस्तान इस्लामी भाई 12,61,305 12,61,305। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 9,49,582 9,49,582। ओवरसीज इस्लामी भाई 29,526 29,526। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,30,716 1,30,716। मजमूई मुताला कारकर्दगी 23,71,129 23,71,129। अमीर अहले सुन्नत से क़ज़ा नमाजों के बारे में सवाल जवाब। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी तकाबुल के एतबार से नुमाया डिवीजन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में सवालात का सिलसिला भी होता है और दुरुस्त जवाबात देने वालों की पहली जो कुरानदाजी होती है उसमें सिलेक्टेड नाम आते हैं और फिर सिलेक्टेड नामों में कुरानदाजी होकर जिनका नाम होता है उनको फिर माहनामा फैज़ान मदीना की पूरे साल की बुकिंग दी जाती है। तो आइए देखते हैं कि कल जो सवालात हुए तो जवाबात में कौन आज विनर है। 7 अप्रैल 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जंगे बदर किस मकाम पर लड़ी गई? जवाब, मकाम बदर में। सवाल नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की कितनी अहादीस बयान फरमाई हैं? जवाब, 2210। सवाल नंबर 3, इस्लाम की सबसे पहली मुफ्तिया का नाम बताइए। जवाब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्ट नाम: मोहम्मद अहमद बिलाल बिन मोहम्मद बिलाल मुल्तान शरीफ, अली नक्काश अत्तारी बिन मोहम्मद नईम अत्तारी फैसलाबाद, साकिब अली अत्तारी ननकाना, बिनते मुजफ्फर इकबाल अत्तारिया पतोकी, अदनान फारूकी कोयटा, बिनते नौमान अत्तारिया जजीरा भिट केमाड़ी कराची, नईम रजा ठट्ठा सिंध। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम नईम रजा ठट्ठा सिंध। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। 3 कुरान पाक पढ़ने की नीयतें 42,579 42,579। 2 कुरान पाक पढ़ने की नीयतें 73,892 73,892। 1 कुरान पाक पढ़ने की नीयतें 1,04,41 1,04,41। 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले 3,06,519 3,06,519। टोटल कुरान पाक पढ़ने की नीयतें 2,16,912 2,16,912। फैज़ान रमज़ान मुताला करने वाले 12,790 12,790। माह रमज़ान माह नेक आमाल मनाने वाले 42,254 42,254। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के सवालात भी नोट कर लिए जाएं। आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना के मुतकिफ़ भी चाहें तो नोट कर लें और SMS के ज़रिए इन सवालात के जवाबात जो है वो आप सेंड कर सकते हैं, इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, शुक्र की आला सूरत क्या है? शुक्र की आला सूरत क्या है? सवाल नंबर 2, बच्चों के सर पर हाथ रखकर दुआ देना कैसा? बच्चों के सर पर हाथ रखकर दुआ देना कैसा? सवाल नंबर 3,
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ یہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں کل اذان عشاء تک بھیج سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی بھیجیں گے انشاءاللہ الکریم یہ قرآن داز میں شامل ہوگا۔ تو بہرحال اسلامی بہنیں جب بھی ایس ایم ایس کریں تو اپنا نام لکھنے کے بجائے ام فلاں یا بنت فلاں کر کے لکھیں، اور اسلامی بہنیں اپنا نمبر دینے کے بجائے اپنے محرم کا نمبر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ آئیے دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان رمضان ہے رحمت رحمت۔ کلام الہی اللہ پاک کا انعام ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے احکام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ قدیم اور جدید تفسیروں اور ذخیرہ کتب کی روشنی میں اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی ہمارے لیے ایک جامع تفسیر، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں صراط الجنان، جس کے علمی اور اصلاحی موضوعات طلباء، علماء اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بے حد مفید ہیں اور ذریعہ ہے قرآن فہمی کا۔ زندگی کو قرآن کی ہدایت کے مطابق گزارنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے یہ سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں لکھی گئی مفتی محمد قاسم عطاری مدظر العالی کی بڑی جامع تفسیر صراط الجنان آج ہی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب فرمائیں۔ آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔